the basis of segmentation, whether it's psychographic, whether it's demographic, behavioral, attitude, all those things, and in what condition a brand should go with what type of segmentation, and what is the crucial question to ask, that what consumers exactly want, why they are buying your product. So that was all we discussed in first lecture, and I also gave you 2 case studies and some questions to discuss. There are some of you have commented on those, and I want you to check those 2 videos and those articles and give your views on those case studies. Next thing is, today we will discuss about hierarchical clustering and k-means clustering. We'll go deep in hierarchical clustering, but not much for k-means because hierarchical clustering is much more important. However, there is one video that I have posted, and it's a 5 minutes, 6 minutes video, and you will be able to understand what k-mean clustering does. Okay. So this is our overview. We have already covered the first part, and now we are moving towards segmentation methods, understanding the, this analysis and the statistics behind it. And after that, we'll do this case study. So I'll give you some basics, when you approach the code, what all, you need to see, how you go through that file. Okay, it will be easier that way. Okay, so coming to clustering methods. So hierarchical clustering is to group observations according to similarity. First of all, I want to know it from you. What do you understand by hierarchical clustering? You have already studied it in BRM or market research. What do you understand? And combining the similar data, homogeneous data. Yes, it's combining the similar data, homogeneous data, but how we combine it, like how the algorithm, how the system knows, how R knows that it is like similar data. Based on like characteristics. हाँ, but statistics. R को कैसे पता चलता है कि ये similar data है? I'm like creating different columns, like specifically gender, like male and female. No, gender तो हम ले भी नहीं सकते इसमें. I'll tell you why. It's like moving the dividing the country into states, then states into districts. That kind of data. Okay, not exactly that. हमने first lecture, जो इससे पहले lecture हुआ था on clustering, what is the definition of clustering? What is the definition of segmentation? Based on their characteristics. Basically, based on whatever characteristic, basically similarity. We look for कि group कर दे उन लोगों को एक साथ जो similar है, right? Ma'am, homogeneous. हाँ? मैम वही homogeneous जो है उनको yes जो homogeneous respondent group. yes. अब homogeneous है वो हम देखते हैं अगर हम H class लगाते हैं, this is just one way to perform cluster analysis, okay, by H class, and we use this function H clust और ये जो bracket में है. But H clust, how it operates on distance based algorithm. Basically, अगर दो respondents के बीच का जो distance है, Euclidean distance, अगर वो कम होगा तो इसका मतलब वो similar है, okay? और वो एक बार फिर से repeat कर दोगे ये क्या H cluster को कब लगाते हैं? H cluster एक function है, हम hierarchical clustering हमें तुमने अभी SPSS में किया होगा, है ना? जब हम hierarchical clustering हमें करना है R में, तो हम H cluster function use करते हैं, H cluster और ये brackets, okay? अब H cluster क्या करता है, ये distance के basis पे respondents को group करता है. Basically, अगर हम कह रहे हैं कि हमें clustering का मतलब ये है कि एक cluster में similar respondents होने चाहिए, they should have similar needs or wants, whatever. So how an algorithm understand similarity? It understand based on distances. अगर दो respondent का distance अगर कम है, then it will be clubbed in one cluster.
Okay, for now just understand that H cluster. I'll do one I'll show you one small example. ठीक है, और कैसे वो डेंडोग्राम बनता है, I'll show you all that. But just understand this कि similarity matrix एक dissimilarity matrix बनती है, although it's called dissimilarity matrix but it's based on like similarity. एक n by n matrix बनती है. For example, अगर 10 respondents हैं और हमारे 10 respondents का हम पेयर वाइज डिस्टेंस निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 whatever 10 and 1 2 3 4 5 10 और उनका हम पेयर वाइज डिस्टेंस निकालते हैं. I'll show you ये कैसे किया जाता है. ठीक है, अभी ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा, but once I'll explain it through one example you'll be able to understand. So बेसिकली हम H क्लस लेते हैं. इस फंक्शन में हम एक मैट्रिक्स डालते हैं. मैट्रिक्स डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिक्स होती है जो जितने भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं उसके साथ n बाय n वाली मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और इसको हम इस H क्लस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं. और ये क्या करता है, इसमें पेयर वाइज हमारा डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता है. और एग्लोमेरेटिव मेथड, डू यू रिमेम्बर एग्लोमेरेटिव मेथड? ये भी पढ़ा था. यस मैम. इसमें क्या होता है मैम? याद नहीं है. एग्लोमरेशन शेड्यूल होता था. शेड्यूल होता हाँ. था ये मैम. पढ़ा था. डेंडोग्राम के साथ ही बनता था मैम. डेंडोग्राम से हमको एकदम प्रॉपर इमेज नहीं मिल पाती थी तो हम एग्लोमरेशन शेड्यूल पे चेक करते. नहीं, एग्लोमरेशन शेड्यूल इज पार्ट ऑफ डेंडोग्राम ओनली. वो तुम आई साइकिल प्लॉट के बारे में बोल रहे हो. Ma'am, it is basically when we repetitively keep on joining the observation and groups. हाँ, फॉर एग्जांपल ये दो क्लस्टर पास में है, इसे ज्वाइन करा और उसके बाद ये वाला क्लस्टर पास में है तो ये ज्वाइन हो गया. लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एग्जांपल. ओके, जस्ट क्लियर दिस थिंग. So for example, I have these 6 people जिनका मैंने इनकम ले लिया. It is in lakhs and this is their education. ठीक है, 18 years, कितने भी years का उनका education है. I have observed this and I have created this kind of table. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth respondent, इसका क्या income है और किसका क्या education है. अगर मेरे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे क्लस्टर एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है. आई जस्ट क्रिएट दीज 2 वेक्टर्स, प्लॉट बना दूंगी. आई पुट इनकम एंड एजुकेशन और मुझे प्लॉट से समझ में आ रहा है ये एक क्लस्टर हो गया, ये दूसरा क्लस्टर हो गया, ये तीसरा क्लस्टर हो गया. इजंट इट? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. मैम फिर से बता दो. ये मेरे पास ये डेटा था. ठीक है, ये क्या डेटा है? रेस्पोंडेंट्स का डेटा है. फर्स्ट रेस्पोंडेंट का डेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. क्लस्टर एनालिसिस में हम क्या कंबाइन करते हैं? रेस्पोंडेंट्स को या केसेस बोलो इसे या ऑब्जर्वेशन व्हाटएवर. ओके, हमें इन रेस्पोंडेंट्स को कंबाइन करना है. अब मैंने इनकी इंफॉर्मेशन ली बिकॉज आई हैव ओनली 6 रेस्पोंडेंट्स एंड आई हैव इनकम एंड एजुकेशन. की फर्स्ट रेस्पोंडेंट की टोटल एनुअल इनकम is 20 lakhs, second की 20 और इनकी ही मैंने एडुकेशन ले ली. फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स एडुकेशन इज 18 years. कितने साल उन्होंने पढ़ाई की भी? 12th तक करी. देन दे डिड देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. I calculated all that and I've just entered the sum of number of years here. ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम. ओके, अब अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा है देन आई डोंट नीड द क्लस्टर बिकॉज 2-dimensional डेटा है. सॉरी मैम, देयर मस्ट बी Hardik in the waiting room. He is actually trying to get in but he is not able to. Anjali, I have admitted her. Hardik. Majan is also in the waiting room. Madam, So I'm not getting any. enter enrollment number and name. Yeah, you have to enter enrollment number and name. Okay, ma'am. Okay. So are you clear about this? यस मैम. यस मैम. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम. Okay. So, hi Hardik, I think you have joined late. So we were discussing that if we have like this data of 6 respondents
और उनका इनकम की वैल्यू है हमारे पास और एडुकेशन की वैल्यू है, एंड इफ आई हैव टू क्लस्टर इट बिकॉज आई हैव ओनली दीज टू वेरिएबल्स, आई कैन जस्ट प्लॉट इट लाइक दिस. ओके, मुझे क्लस्टर एनालिसिस रन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें. ओके, एंड आई कैन इजीली फाइंड कि ये 3 क्लस्टर्स हैं. ओके, अब एक चीज देखते हैं कि अगर ये ही डेटा है और हमें इससे डेंडोग्राम बनाना है, सो हाउ वी कैन डू दैट. अगर मेरे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल होता, अभी मेरे पास 2 वेरिएबल था, आई हैड इनकम एंड एजुकेशन, so it was easier to plot and see these clusters. Okay, but if I have like more than 2 dimensions, so it's not easy to see it, and then in that case I have to run cluster analysis. अभी इसी डेटा से let's see कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है. what is the यूक्लिडियन डिस्टेंस? कोई बताएगा what is यूक्लिडियन? Don't know, ma'am. You don't know? ये तो था लास्ट सेमेस्टर में. distance between two clusters. हाँ, no, not clusters, between 2 respondents. Two respondents. Okay, hierarchical clustering या agglomerative method में क्या होता है, सबसे पहले हर एक respondent एक individual cluster की तरह act करता है. ठीक है, अगर ये 6 respondents है, so each respondent will act as individual clusters. Okay, और हम फिर हर 2 respondents या whatever respondents are there, इनके बीच में distance देखते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड लेना पड़ता है ना? सेंट्रॉइड इसमें नहीं, सेंट्रॉइड नहीं, हम इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं. सेंट्रॉइड हम के मीन्स में निकालते हैं. ओके, हम इसमें small distance लेते हैं या long distance? What is a small distance, long distance? Means to say the distance between two respondent. तो जो हम डेंडोग्राम प्लॉट करते हैं, हाँ, उसमें मैम 2 respondents के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं स्मॉल डिस्टेंस. ओके, उस पे भी आएंगे कि वो कब आता है. एक्चुअली जब हमारा फर्स्ट डिस्टेंस का मेजर होता है, आई विल कंप्लीट दिस एंड यू विल गेट टू नो कि वो क्या होता है. दैट इज लिंकेज. ठीक है, सबसे पहले हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं. फॉर एग्जांपल रेस्पोंडेंट फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 20 - 20 होल स्क्वायर प्लस 18 - 16 होल स्क्वायर, दैट इज 2. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. Yes, ma'am. ओके, ऐसे ही हमारे 6 रोज हैं. बेसिकली पेयर वाइज एक डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है. ओके, 6 रेस्पोंडेंट्स, 6 रेस्पोंडेंट. फर्स्ट के साथ डिस्टेंस 0 ही होगा. फर्स्ट का सेकंड के साथ अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया, ये 2 निकल गया. 20 - 20 होल स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड रेस्पोंडेंट का डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस. ऐसे हम सारे पेयर वाइज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. वी डोंट हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, दिस इज समथिंग जो आर करता है हमारे लिए. ओके, इस टाइप की ये डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाती है. सेकंड और थर्ड रेस्पोंडेंट का क्या डिस्टेंस है. ये फॉर्मूला बताना मैम एक बार. सॉरी, फॉर्मूला मैम. फॉर्मूला ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर डिफरेंस है अंडर रूट. ये वाला फॉर्मूला हाइपोथेसिस वाला फॉर्मूला. हाइपोथेसिस बोलो या डिस्टेंस बोलो, ये इंजीनियरिंग किसने किया है यहाँ पर? इंजीनियर्स कौन कौन है? मैम h स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस b. हाँ, तो क्या होता है, ये x1 और x2 ये 2 पॉइंट्स हैं अगर, और इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 - x1 होल स्क्वायर. हाँ, और अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं y1 और ये y2, y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. सिंपल, वही किया मैंने. ये इनकम का फर्स्ट और सेकंड का, ये हमारा x1 है, x1 y1, ये हमारा x2 y2, और इसका मैंने डिस्टेंस निकाल दिया. ठीक है, और जैसे ये फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस निकाला, ऐसे फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और फोर्थ का, फर्स्ट और फिफ्थ का, फर्स्ट और सिक्स्थ का, ये सबका डिस्टेंस निकल गया. ओके, यहाँ पर मैंने क्यों पॉइंट्स नहीं लिखे, कोई बता सकता है?
क्योंकि हम उसका ग्रुप ही यहाँ नहीं है पे उसके साथ। रिपीट मैम बिकॉज हो नेगेटिव सकते हैं मैम। Exactly, 1 6 it और will be 6 1 repetitive. कॉमन होगा तो मैम Repetitive. रिपीट हो जाएंगे वो। हाँ 1 6 और 6 1 कॉमन होगा। इट्स लाइक दिल्ली और गुड़गांव के बीच का जो डिस्टेंस है वो गुड़गांव और दिल्ली के बीच का भी डिस्टेंस है, isn't it? Yes, ma'am. ओके सो हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, आई एम शोइंग ओनली दिस। ओके अब क्या होता है, फर्स्ट थिंग इसमें सबसे कम डिस्टेंस किसका है? किन रेस्पोंडेंट्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है? 1 and 2 1 and 2। ये और भी कुछ? 3 and 6. 3 and 6. 3 and 6। सो हमारा डेंडोग्राम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को और थर्ड और सिक्स को ज्वाइन कर देगा एट अ ज्वाइनिंग डिस्टेंस ऑफ सेकंड। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम वो मिनिमम पे करेगा फिर क्या करेगा? अब क्या होता है, हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिक्स को ज्वाइनिंग डिस्टेंस सेकंड पे तो ये ज्वाइन हो गया। अब ये वाला फर्स्ट और सेकंड जो मेरा ये क्लस्टर बना, अब ये थर्ड से अगर ज्वाइन करेगा, थर्ड और सिक्स से इससे ज्वाइन करेगा तो कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू इन दिस। Ma'am, how this cluster will be made? Please explain once again. Okay, so I have calculated distance matrix. Basically मेरे पास ये डेटा था, मैंने फर्स्ट और सेकंड रेस्पोंडेंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1। Yes, ma'am. ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दिया। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस मेरा 2 आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे रिस्पोंडेंट्स का n by n मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया और फर्स्ट का फर्स्ट से डिस्टेंस, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का फर्स्ट से, सेकंड का फर्स्ट से, बेसिकली हर एक रिस्पोंडेंट का हर एक रिस्पोंडेंट से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके Yes, ma'am. और अभी Yes, मैंने ma'am. बताया जैसे एग्जांपल कि अगर दिल्ली और गुड़गांव का जो डिस्टेंस है, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का जो डिस्टेंस है वो ही सेकंड और फर्स्ट का भी होगा, यानी यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके तो मैंने सिर्फ Yes, ma'am. ये डायगोनल से ऊपर वाला ही मैंने कैलकुलेट किया है। ओके अब क्या हुआ, इसमें सबसे कम जो डिस्टेंस है वो मैंने देखा, व्हाट इज द लोवेस्ट डिस्टेंस, वो है फर्स्ट और सेकंड का एंड थर्ड और सिक्स का। तो मैंने ज्वाइनिंग डिस्टेंस 2 पे, क्योंकि उससे कम कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ज्वाइनिंग डिस्टेंस, दिस इज ज्वाइनिंग डिस्टेंस 2 पे मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया और फिर थर्ड और सिक्स को कंबाइन किया। ठीक है मैम। ठीक है, ये हो गया। Yes, ma'am. अब पॉइंट आता है, अब मुझे कंबाइन करना है नेक्स्ट क्लस्टर, तो वो कौन सा क्लस्टर होगा? वो फर्स्ट और सेकंड को मैं थर्ड और सिक्स से करूंगी, फोर्थ या फिफ्थ से करूंगी, और मैं किस तरीके से वो कैलकुलेट करूंगी। तो ऐसे हमारे पास ना लिंकेज के रूल्स होते हैं कि आप मिनिमम लिंकेज लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड रेस्पोंडेंट है और ये मेरा थर्ड रेस्पोंडेंट है। ओके, फर्स्ट और सेकंड मेरा ग्रुप हो गया है। ओके ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर ग्रुप हो गया था ना यहीं पर। मैम जो सेम नंबर आएंगे, जो सेम डिस्टेंस होंगे, वो ग्रुप हो जाते हैं? नहीं, अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल पे जो सबसे छोटा होगा डिस्टेंस वो ग्रुप हुआ है। अभी तुम ये पूरा एग्जाम्पल एक बार समझो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। हमने यहाँ पे ग्रुप किया 2 and 1 को, 6 and 3 को। हाँ, ये जो ये ऐसे बन गया ना, ये डेंडोग्राम बन रहा है ये। ओके यस मैम, हम लोग डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करें? हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी, ओके, अगर इनकम और हम डिस्टेंस मेजर से कैलकुलेट करते हैं तो इनकी सिमिलैरिटी ज्यादा नहीं होगी अगर इनका डिस्टेंस कम है। ओके मैम, गॉट इट। 20 इनकम है, इसकी भी 20 है, इसका 18 16, तो यानी डिस्टेंस अगर कम है यानी ये ज्यादा सिमिलर है, दोनों की इनकम सेम है और एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके ओके यस। ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, थर्ड और सिक्स भी सेकंड पे ज्वाइन हो गया, बट अब ये प्रॉब्लम है, अब नेक्स्ट वाला कैसे करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लस्टर रेस्पोंडेंट की बात करती हूँ तो फर्स्ट और सेकंड तो एक क्लस्टर में है,
पर अगर मुझे थर्ड और इसकी डिस्टेंस देखना है तो मैं कैसे देखूं? थर्ड और फर्स्ट का डिस्टेंस देखूं या थर्ड और सेकंड का? बेसिकली थर्ड और फर्स्ट का क्या डिस्टेंस है? 10.2। 10.2 और थर्ड और सेकंड का क्या डिस्टेंस है? 10.8। 10.8। तो मैं क्या चीज लूं? वेदर आई टेक 10.2 और 10.8? यहाँ पर आप 10.2 नहीं, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा लिंकेज मेथड सेलेक्ट करते हो। ये सुना था सिंगल लिंकेज, मिनिमम लिंकेज, मैक्सिमम लिंकेज, एवरेज लिंकेज, वॉर्ड्स मेथड, ये सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सिर्फ मिनिमम लिंकेज देखते हैं कि मिनिमम लिंकेज क्राइटेरिया अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ओके, तो मिनिमम लिंकेज कहता है कि D12 यानी फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर और थर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 10.2 और 10 पॉइंट में से जो मिनिमम होगा वो कर लेंगे, दैट इज 10.2 ले लेंगे। ओके, ये समझ में आया? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमें पता था कि थर्ड तो क्लस्टर बना था, मेरा 6 भी क्लस्टर बन गया था, थर्ड और 6 ऐसे क्लस्टर बन गया था, ठीक है। तो थर्ड और इसके बीच में तो मैंने चूज कर लिया, ओके मैं 10.2 से जाऊंगी, ये वाला नेम करेंगे। पर अब मेरा ये 6 क्लस्टर है, इसके साथ भी हम 1-2 को देखेंगे कि 10.8 लेंगे या 11.6। बेसिकली फर्स्ट और 6 का जो डिस्टेंस है वो देखेंगे या फिर थर्ड और 6 का जो डिस्टेंस है वो देखेंगे। इसमें भी मिनिमम ले लिया हमने 10.2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मैम इसमें हम फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस लेंगे या फर्स्ट और 6 का डिस्टेंस लेंगे, ये करेंगे ना हम पता? सॉरी, फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस लेंगे या फर्स्ट और 6 का लेंगे? तो इसमें फर्स्ट और थर्ड का इज 10.2 व्हिच इज मिनिमम, सो वी विल सिलेक्ट दैट एंड रिजेक्ट द अदर वन। पहले हमने देखा फर्स्ट और थर्ड का क्या डिस्टेंस है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं? यस मैम। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक और एग्जांपल समझा दो, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मेरा है साउथ दिल्ली, ठीक है, सेकंड मेरा है नॉर्थ दिल्ली, ओके। ये जो हमारा थर्ड है ये है हमारा न्यू गुड़गांव, ओके, और ये है हमारा ओल्ड गुड़गांव। तो मुझे ये पता है जो दिल्ली का है, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, ये तो दिल्ली के अंदर ही है, ये ज्यादा पास है, तो फर्स्ट और सेकंड अलग जुड़ गए, और सॉरी फोर्थ नहीं, क्योंकि थर्ड और 6 जुड़े थे। ये है हमारा ओल्ड गुड़गांव, ठीक है। जो दिल्ली में था फर्स्ट और सेकंड। मैम फिर फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला हम आगे और जब डेंडोग्राम बनेगा तब पता चलता रहेगा। बेसिकली आई वांट टू एस्टैब्लिश कि कैसे ये डेंडोग्राम बनता है। ओके मैम। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को समझो, दिस इज साउथ दिल्ली, सेकंड इज नॉर्थ दिल्ली, बिकॉज ये दिल्ली के अंदर है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो ज्वाइन हो गया। अब मैंने और गुड़गांव, न्यू गुड़गांव और ओल्ड गुड़गांव के अंदर है, ये दोनों भी ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट क्या होगा, और अब मुझे सिर्फ सबसे पहले मैं क्या करूंगी, न्यू गुड़गांव से मैं देखूंगी साउथ दिल्ली से मैं कैलकुलेट करूं डिस्टेंस या नॉर्थ दिल्ली से कैलकुलेट करूं। और मिनिमम लिंकेज कहता है कि जो भी मिनिमम डिस्टेंस है तो मैं उससे जाऊं, सो मैं साउथ दिल्ली से कैलकुलेट कर रही हूँ डिस्टेंस, ओके। यानी यहाँ पर मैं किससे करूंगी, साउथ दिल्ली से, यानी 10.2 से। ये समझ में आया? यस मैम। ओके, और ऐसे ही अब मैं ओल्ड गुड़गांव से अभी देखूंगी कि ओल्ड गुड़गांव से मैं साउथ दिल्ली से देखूं या नॉर्थ दिल्ली से देखूं। मैम साउथ दिल्ली। यस, वो भी साउथ दिल्ली। तो यही चीज हमें इसमें करनी है। यू विल गो थ्रू दिस और अंडरस्टैंड करना है ये सब चीजें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आया या नहीं? yes, ये देखो 1, 2 और 3, ठीक है। मैंने साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली लिया, और ये गुड़गांव न्यू लिया, और मैंने मिनिमम ले लिया 10.2 साउथ दिल्ली से। और ऐसे ही मैंने क्या किया, साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली को ओल्ड गुड़गांव से देखा, और मैंने इसमें कौन सा मिनिमम आया मेरा, 10.2। इसमें गुड़गांव ओल्ड से जब देखा तो 10.8, ठीक है।
तो 10.2 और 10.8 का जो मिनिमम है, यानी 1 2 और 3 6 का जो ये है, ये 1 2 और 3 6 का डिस्टेंस मेरा क्या आ गया अब 10.2, क्योंकि मैंने इन दोनों का फिर मिनिमम लिया। ठीक है, तो ये आइटरेटिव प्रोसेस होती रहती है। और मैम से फोर्थ और फिफ्थ आईडी का करना है तो उसमें 3 है जैसे हम दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो अब इसमें कैसे करके करेंगे आगे? हाँ, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। जैसे तुमने ये कर दिया 1 2 3 6 का कर दिया 10.2, ओके। अब ये ही देखना कि पहले इसका डिस्टेंस तुम करके देखना 4 के साथ, ठीक है? यस 4 के साथ क्या आ रहा है, जैसे ये किया ना, वैसे जैसे 3 6 को किया है वैसे 1 2 को 4 से करना। बेसिकली ये छोड़ दो मैम, बट हमने 3 6 का तो इसलिए किया है क्योंकि हमने इस डिस्टेंस मैट्रिक्स में ये देखा था कि सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम 1 और 2 का डिस्टेंस है प्लस सबसे मिनिमम 3 और 6 का डिफरेंस है। ये करा। तो अभी ये मेरे पास ये आंसर आया 10.2। अभी क्या करेंगे, ये यानी इसका क्या मतलब है, 10.2 का मतलब है कि मेरा जो ये 1 2 और 3 6 है ये कहीं 10.2 पे, यहाँ पर कहीं पे, सपोज अगर मैं 10.2 यहाँ पर करती हूँ तो ये 1 2 और 3 6 कहीं यहाँ पर मिलेंगे, ओके है ना? यही मतलब आया ना। पर उससे पहले क्या कोई 10.2 से कम भी डिस्टेंस है? चेक करो, कोई और भी डिस्टेंस है? 4 और 5 किस पे मिल रहे हैं मैम? 3 पे। तो सबसे उससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 5 को हम 3 के ज्वाइनिंग डिस्टेंस पे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे क्लस्टर बन जाएगा। मैम एक बार ही रिपीट कर दो ये वाला। एंड मैम फिर से 4 और 5 के साथ वही सेम मैकेनिज्म होगा जो हमने 1 और 2 और 3 के साथ किया था? हाँ ओके, एक बार तुम करके देखोगे तो ये मैम समझ में आ 4 5 का, तो मैम हम ये 4 5 का किससे करेंगे अब? ये तुम्हें ट्राई करना है कैसे करेंगे। 1 2 और 3 6 का हमें पता चल गया यहाँ पर आएगा, ठीक है, इन दोनों का करने की जरूरत नहीं है। और 4 5 को 3 6 से देखना, 4 5 को 1 2 से देखना, 4 5 को पहले 1 से देखना, ठीक है, जैसे हमने इसमें किया। फिर 4 5 को 2 से देखना और 4 5 को फिर 1 2 से देखोगे तो ये कोई एक वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हारा ज्वाइनिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा। हर इंडिविजुअल आईडी को हर एक आईडी से कंपेयर करना है बेसिकली, जो तुम्हारे, हाँ एक बार तुम करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरा फर्स्ट सेकंड ज्वाइन हो गया, मेरा थर्ड सिक्स्थ ज्वाइन हो गया, ये इतने डिस्टेंस पे हुआ सेकंड पे। अच्छा, अब थर्ड पे कौन सा ज्वाइन हो रहा है, ओके, अब फोर्थ पे कौन सा ज्वाइन हो रहा है। जो तुम्हें सीधे सीधे इससे समझ में आ जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा, ओके ये यहाँ पर ज्वाइन होगा। और एग्जाम्पल, मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मुझे पता चल गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिक्स मेरा बहुत लेट ज्वाइन हो रहा है, अराउंड 10.2 पे, है ना। और मैंने ये वाला जो था फोर्थ और फिफ्थ, ये यहीं से पता चल गया। यहाँ पे और भी देखो, थर्ड है, उसके बाद क्या है 5.1 है, तो फोर्थ वाला कुछ, उसके बाद कुछ फोर्थ वाला ज्वाइन होगा, फोर्थ और सेकंड। ये इससे इंडिकेशन मिल रहा है ना, फोर्थ और सेकंड। ये देखो 5.1 पे है और फोर्थ और फर्स्ट किस पे है, 5.8 पे है। तो अभी कुछ 4 और 5 के बीच में कुछ ज्वाइन होगा, पर 5.1 पे ज्वाइन होगा फर्स्ट सेकंड से या 5.8 पे ज्वाइन होगा, ठीक है, 5.8 पे ज्वाइन होगा। मतलब वो तुम्हें देख लेना वो कैलकुलेट करके। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया, ये करना तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये जस्ट ट्राई इट वंस, ओके। एंड यू हैव टू अपडेट दिस डेंडोग्राम, ओके। So all silence. Are you able to understand? Ma'am, no, ma'am. Ma'am, all these calculations are done by R. And where will be the end of this diagram also? हाँ, the end of this diagram. Agglomerative schedule क्या कहता है कि we will start each cluster as individual, each respondent as individual clusters. और जब सब respondent combine होके सिर्फ एक बन जाएगा, वो एंड हो जाएगा, यू नो, एक कंप्लीट क्लस्टर बन जाएगा, तो तब ये एंड हो जाएगा। ओके, तो हमें एक डिस्टेंस मिल जाएगा। यस, फॉर ऑल द क्लस्टर्स। हाँ, पर अब हमें जब हमारा डेंडोग्राम बन जाता है, हाउ डू यू रीड दैट डेंडोग्राम, कि
कौन सा क्लस्टर, जो क्लस्टर जल्दी ग्रुप हो गया यानी वो बहुत सिमिलर थे, ओके, और जो थोड़ा लेट ग्रुप हुए वो काफी डिसिमिलर थे। तो हमें वो बैलेंस देखना होगा कि हमारे क्लस्टर्स जो है उसका साइजेबल चंक भी हो पर वो इतना डिसिमिलर भी ना हो। बेसिकली हमें होमोजीनियस सेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, ओके। ये होमोजीनियस सेगमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे डेंड्रोग्राम की हेल्प से, कि हम ज्वाइनिंग डिस्टेंस देखेंगे कि कहाँ पर वो डेंड्रोग्राम का जो क्लस्टर बन रहा है वो इतने दूर जाकर भी ग्रुप ना हो। फॉर एग्जांपल ये और ये यहाँ पर अगर जाके ग्रुप होता है और ये वाला यहाँ पर ग्रुप होता है तो मैं कट करूंगी डेंड्रोग्राम को यहाँ पर, ओके। या ये वाला और ये वाला मेरा यहाँ जाके ग्रुप होता है। डेंड्रोग्राम किया था ना तुम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में? नहीं किया। No ma'am, no ma'am. मैम इज दैट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं किया। इज दैट पॉसिबल दैट आप एक सारा चीज नया है। क्वेश्चन करवा दो एंड देन यू जस्ट गिव अस अनदर हाँ, ये डेंड्रोग्राम देखो मैं तुम्हें आर में ये भी नहीं पता, हमें यही नहीं पता होता क्या डेंड्रोग्राम। अच्छा ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये एक बार करके देखना। आई डोंट वांट टू टेल यू अभी ये चीज, अदरवाइज तुम करोगे नहीं है कि ये जो मिनिमम है। आप बता दो फिर क्वेश्चन चेंज कर देना बोलेंगे। नहीं ये आएगा ही बता, तो हम करेंगे कैसे? ये अभी पूरा सॉल्व करके हम जब आता ही नहीं होगा तो करेंगे कहाँ से मैम। क्वेश्चन दे देना। नंबर चेंज कर दिए ट्राई मैंने तो इसके। ABCD भी लिख देंगे फिर हम, वो ट्राई नहीं होगा। हाँ नहीं, ये तो सिंपल मैथ्स है, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। तुमने एक हम कॉमर्स लिए थे, हमें मालूम नहीं मैथ्स। 1 2 3 4 5 6 और बस तुम्हें ज्वाइन करते जाना है। जो यहाँ पे सेकंड फॉर एग्जांपल फोर्थ का डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस, व्हाटएवर यू नो डिस्टेंस ये तो ग्राफ हो गया ना। बनाया। हाँ तो वही ग्राफ नहीं, इसे डेंडोग्राम हम कह रहे हैं, ओके। मतलब मैम अगर टेढ़ा ग्राफ बना दो तो वो डेंडोग्राम होता है। नो ओके No, I was using my pen. It was not possible to write it like that. Okay. Oh भाई मारो मत मारो। So it's like that. एक मिनट मैं तुम्हें आर में दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है, ओके। ये वाली एक्सरसाइज एक बार ध्यान से मैम जो पेपर में आएगा क्वेश्चन वो एक बार करवा दो। पेपर में आएगा मैम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही वाला। मैम इसको क्वेश्चन पेपर ला के तो उस टाइप का करवा दो, कब से हम चेंज होगा वो हम कर देंगे। तब भी पूरे नंबर नहीं आएंगे। नहीं सी यू हैव टू जस्ट रीड दिस थिंग कि ये कैसे ऐड होता है। अगर तुम्हें ये समझ में आया है, ये इतना भी समझ में नहीं आया, ये वाला ये जो पार्ट है आ गया मैम, इतना समझ आ गया, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। बस ये काफी है। लास्ट लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुई एक मैम वो 45 वाला नहीं आया। कौन सा वाला नहीं आया? जो मैम जिसमें ये D1 2 and 3 6 है, ये वाला एक बार। अच्छा D1 2 और 3 6, ओके। हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का जो है वो डिस्टेंस था 10.2। अच्छा उससे पहले ही जाना पड़ेगा, हाँ यहीं पर ही। फर्स्ट और सेकंड का जो डिस्टेंस है वो क्या था हमारा 2। फर्स्ट और सेकंड का क्या डिस्टेंस है 2। बट हमें क्या करना था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब हमारे पास थर्ड है। तो मुझे ये देखना है कि थर्ड को मैं फर्स्ट वाला डिस्टेंस से ज्वाइन करूं या थर्ड को सेकंड वाले डिस्टेंस से ज्वाइन करूं। बेसिकली थर्ड और फर्स्ट का क्या डिस्टेंस है 10.2, या थर्ड को सेकंड वाले डिस्टेंस से ज्वाइन करो दैट इज 10.8। तो मिनिमम क्राइटेरिया कहता है, मिनिमम लिंकेज क्राइटेरिया जो भी मिनिमम है उससे ज्वाइन करो। तो बेसिकली 1 और 2 वाला जो क्लस्टर है वो अगर थर्ड से ज्वाइन होगा तो वो 10.8 पे नहीं 10.2 पे ज्वाइन होगा। तो ये जो थर्ड से अगर ये ज्वाइन होगा 1 and 2, सॉरी तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो क्लस्टर है ये थर्ड से 10.2 के डिस्टेंस पे ज्वाइन होगा, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया? 10.2 के डिस्टेंस से ज्वाइन होगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का उन्होंने देखा कि 6 का 1 और 2 को अगर ज्वाइन करेंगे तो 10.8 के डिस्टेंस पे। we are taking 6 we need only the what is the distance from 1 to 2 to 3. हाँ, this is the question, so why we are taking 6?
क्योंकि 3 और 6 भी सेम ही क्लस्टर पे है, ये ऑलरेडी सेकंड वाले ज्वाइनिंग डिस्टेंस पे ऑलरेडी ही ये कंबाइन हो चुका है। तो अब ये है कि हम ये फर्स्ट और सेकंड को अगर देख रहे हैं कि थर्ड से जब ज्वाइन करेंगे तो ये कह रहे हैं कि 10.2 से करेंगे, ये 10.2 ओके। और अगर फर्स्ट सेकंड को हम 6 से कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं 10.8। तो बेसिकली इन दोनों का मिनिमम क्या है 10.2, तो थर्ड और 6 से ये 10.2 पे ज्वाइन करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10.2 है तो ये 10.2 पे ज्वाइन कर देगा। इतना समझ में आया? Yes, मतलब मैम ये मिलेगा मैम 1 और 2 और ये 1 और 2 ये थर्ड पे मतलब 6 पे मिलेगा, ये 10.2 पे जाके ये मैच करेंगे। एग्जैक्टली बस। मैम And this is the minimum point and maximum point will be the difference when we apply the अगर मैक्सिमम पॉइंट हाँ तो तुम फिर 10.8 करोगे, है ना? यानी मैम, ये भी यहाँ तो का जो minimum है ना, आपका यहाँ ये का 6 का minimum है। 10.8 नहीं, इसी में ही देखो यहाँ पर अगर मैक्सिमम तुम कैलकुलेट करते हो, अगर तुम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हो तो ये 10.2 की जगह क्या हो जाएगा? वो 10.8 हो जाएगा और ये 10.8 की जगह क्या हो जाएगा? 11.6। ये 11.6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 10.8 और 11.6 का लोगे तो क्या आ जाएगा? 11.6। तो ये 10.2 की जगह 11.6 पे जाकर मिलेगा। ओके मैम अगर 3 और 6 का कोई लिंक नहीं होता देन व्हाट विल टेक? तो हम ये देखते हैं कि और कौन सा ज्वाइनिंग डिस्टेंस है जो सबसे कम है। ओके मैम यस, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमको इससे जैसे 3 को 6 से ही ज्वाइन करना है? ये ज्वाइनिंग डिस्टेंस सबसे कम किसका था? ये वाला और ये वाला सबसे कम ज्वाइनिंग डिस्टेंस से स्टार्ट कर दिया हमने। अच्छा। और फिर हमने लिंकेज वाला मेथड सेलेक्ट कर लिया कि मिनिमम लिंकेज मेथड से अब हम आगे के ज्वाइन करेंगे। हमें पता चल गया फर्स्ट सेकंड, और हमें क्या करना है, हमारे पास सिर्फ ये 6 रेस्पोंडेंट है, हमें इनकी क्लस्टर बना के तब तक बनाना है जब तक हमारा एक इंडिविजुअल क्लस्टर नहीं बन जाता। हमारे ये वह सेकंड, थर्ड और 6 तो ऑलरेडी हो ही गए ज्वाइन 10.6 पे। हमें बस ये 4th और 5th को देखना है कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ये 4th और 5th 3 पे। लो सॉल्व भी कर दिया। चलो तुम्हारा मैम अगर इनकेस 1 और 2 पर ही होता है और 6 और 3 कोई और डिजिट होती जैसे कि मैम 4 या 3 या 4। हाँ तो वही बात हो गई, जैसे 3 और 6 को तुमने 4 और 5 लिख दिया, बेसिकली वही बात हो गई। नहीं मैम, जैसे सबसे स्मॉल 2 है जो 2 और 1 पे है और 6 और 3 पे है। तो अगर मैम 3 और 6 की जगह पे 2 ना होता और यहाँ पे 3 होता तो फिर मैम हम कौन सा लेते फिर सबसे छोटा? सबसे छोटा, क्योंकि फिर तुम कह रहे हो ना सेकंड है ही नहीं, तो फिर मैं ये देखती कि कौन सा सेकंड 1 और 2 पे तो है, तो सिर्फ एक ही पेयर बनता फिर उस टाइम पे। नहीं फिर सेकंड का और थर्ड का 2 का पेयर बना के एक करते ना। थर्ड 3 तो एक और नंबर पे भी लिखा हुआ है ना 5 और 4, तो फिर तो अभी पहले से हमें 2 मिल रहे हैं तो हम 2 का एक क्लस्टर बना रहे हैं ना। अब हमें जैसे 3 मिल रहा है, फिर उसके बाद अगर कोई मिलता है तो हम अभी आगे चल के 2 और 3 का बनाएंगे एक क्लस्टर। कोई भी तुम्हारे पास डाउट्स हैं प्लीज तुम फोरम में पोस्ट कर दो, ठीक है? आई एम वेरी श्योर कि एक बार तुम जाओगे, वंस यू गो थ्रू दिस तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन होती है तो तुम वो डेटा डाल के एंड देन ट्राई कि अगर ये वाली कंडीशन है तो कौन सा आ जाएगा। मैम यस अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? सी ये कोई मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेंडोग्राम का एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे ये डेंडोग्राम नहीं आएगा मैम। नहीं ये आर में बना इससे डिफिकल्ट आएगा, ये तो स्टार्टिंग है। अरे नहीं, बहुत इजी बना हुआ आएगा। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आर में क्या एल्गोरिथम रन होता है। तो क्वेश्चंस आएंगे क्या? क्वेश्चंस ये आ जाएगा। चलो 4th और 2nd के बीच का मिल जाएंगे तुझे। 4th और 2nd के बीच का डिस्टेंस क्या है, और सिर्फ इस मैट्रिक्स में देख के बताओ कौन सा क्लस्टर सबसे पहले बनेगा। बताओ इस मैट्रिक्स में देख के कौन से क्लस्टर्स 1 2 1 3 6 दैट्स इट। और सबसे लास्ट 6 और लास्ट सबसे लास्ट 4 5 2 and 6 2 and 6 that's it, that's ठीक है। ओके सो ऐसे ही K मींस क्लस्टरिंग है। यू हैव टू गो थ्रू वन वीडियो
बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है के मींस क्लस्टरिंग में, बस इसमें हम के मींस क्लस्टरिंग में हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स बता देते हैं कि कितने क्लस्टर्स है। कैलकुलस क्लस्टरिंग हम रन करते हैं, उससे देखते हैं कि कितने सारे क्लस्टर्स बन रहे हैं और फिर वो के मींस में हम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, आई शेयर व्हाट यू हैव टू सी इन दिस, जो हम मंडे डिस्कस करेंगे। However, मैंने एक तुम्हें डेटा दिया है और मैंने तुम्हें एक फाइल दी है। हैव यू गॉन थ्रू दैट RMD फाइल, मार्केट सेगमेंटेशन वाली? Yes, ma'am. तो क्या समझ में आ रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, कुछ चीजें हैं उसे वैसे समझने की कोशिश करना। सो I have done this customer segmentation. This was a business decision. They wanted to know कि they feel कि उनके जो market segments हैं they are different and they want to attract only few profitable market segments. तो हमें वो check करना है कि कौन से profitable market segments हैं, okay? और ये सारे variables हैं। उसके साथ age, gender, frequency of mall visits ये भी है। तो डेटा तुम अगर देखोगे, और क्या सबसे पहले करेंगे डेटा को देखने के लिए? हेड। याद है ये हेड या भूल गए? Yes, ma'am. Yes, फर्स्ट 6 रोज, एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स। हाँ, फर्स्ट 6 रोज तुम देखोगे तो तुम्हें ये सब चीजें दिखेगी। हमारा ये वाले ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, आईडी को भी अलग से मैंने फिर डाला है। ये देखना, ये सारे जो 6 वेरिएबल्स हैं, इसको हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं इस पे, क्योंकि ये हमारे सेगमेंटिंग वेरिएबल्स हैं। कुछ बताया था मैंने, सेगमेंटिंग वेरिएबल्स जिनके बेसिस पे हम सेगमेंट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्लस्टर करते हैं, ये मेरे सेगमेंटिंग वेरिएबल्स हैं। तो क्लस्टरिंग में ये सिर्फ 5-6 पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ ये 5-6 स्टेप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कोई मिसिंग वैल्यूज है या नहीं। इस डॉट एन मैंने एक कोड लिखा है, कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, सब फॉल्स था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी उसमें। अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज होती है देन वी हैव टू रिप्लेस इट विद NA। सेकेंड चीज, डेटा प्रिपरेशन में हम डेटा को स्केल करते हैं। एक फॉर्मूला याद है, Z इक्वल्स टू x माइनस न्यू बाय सिग्मा। ये फॉर्मूला याद है? Yes, ma'am. Yes, से स्टैंडर्डाइज करते हैं, हर एक वैल्यू को उसका मीन से डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, Standard error. हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये R में हमें बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है हमें, बस जो हमारा डेटा है, ये डेटा का नाम मैंने चेंज कर दिया। सेग डेटा था, मैंने कहा कि स्टैंडर्ड सेग डेटा का मतलब होगा स्केल कर दो डेटा, जस्ट स्केल लिखना है। और सेगमेंटेशन डेटा, सिर्फ मेरे वो वाले कॉलम्स उठाओ जो कि मेरे सेगमेंटिंग वेरिएबल्स हैं। मैंने बताया था ना सेगमेंटिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, these 6 कॉलम्स। ठीक है, तो अब जब तुम ये फाइल देखोगे, ये देखना कि स्टैंडर्ड सेग डेटा, ऐसे मैंने रीनेम कर दिया, सेग डेटा था पहले, स्टैंडर्ड सेग डेटा दिया, और आई हैव स्केल्ड दिस। स्केल करने के लिए मैंने सिर्फ ये वाले कॉलम्स उठाए हैं। देखो रो में कुछ नहीं है, दैट मीन्स सारी रोज आ जाएंगी, और कॉलम सिर्फ फर्स्ट से 6 आएगा। ओके, और फिर मैंने ये हेड रन किया एंड आई चेक दिस। ये जो वैल्यूज है, अगर तुम इसका मीन भी देखोगे तो इसका मीन भी 0 आएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग। सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग जो हम करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, जो मैं तुम्हें दिखा रही थी, वो करने की जरूरत नहीं है। बस यू शुड नो कि अगर मैंने सिर्फ 1:5 1:5 की मैट्रिक्स करी है, आई मीन टू से कि सिर्फ फर्स्ट 5 रोज एंड फर्स्ट 5 कॉलम्स की मैट्रिक्स करी है, एंड आई कैन, सो दैट आई कैन सी कि मेरा पहले मैंने डिस्टेंस निकाला, यूक्लिडियन मेथड डाला, ओके, इसी डेटा पे, स्टैंडर्ड सेग डेटा पे। ये सभी चीजें तुम्हें बस ध्यान रखनी है कि मैंने सेग डेटा लिया, ये वाले कॉलम्स लिए क्योंकि मेरे सेगमेंटिंग वेरिएबल्स हैं, और स्टैंडर्ड सेग डेटा ये लिया। स्टैंडर्ड सेग डेटा पे ही मैंने यूक्लिडियन मेथड लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, और इस डिस्टेंस की मैंने मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स के लिए किसी को कन्वर्ट करना हो मैट्रिक्स में, देन वी से as dot matrix, ये फंक्शन लिया, और इस डिस्टेंस को मैंने मैट्रिक्स में डाला, एंड आई आस्क्ड R to show me first 5 rows and first 5 columns. Why first 5 rows, first 5 column? क्योंकि इसमें टोटल रेस्पॉन्डेंस है मेरी 160। अगर मैं पूरी रोज करूंगी तो 160 मेरे रोज आ जाएंगी, 160 कॉलम्स की इतनी बड़ी मैट्रिक्स आ जाएगी।
That's why I asked for just 1:5 rows and 1:5 column. इसे कहते हैं डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स. ये देख रहे हो, ये फर्स्ट से फर्स्ट, ये जो है 0 0 ऐसा ही कुछ हमने किया था ना. ये डिस्टेंस है बेसिकली, यूक्लिडियन डिस्टेंस ही. सेकंड और सेकंड के बीच का क्या यूक्लिडियन डिस्टेंस है, थर्ड और फोर्थ के बीच का क्या यूक्लिडियन डिस्टेंस है. ओके और इससे हमें डेंडोग्राम करना है तो कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ हमने ये फॉर्मूला लगाना है. दैट्स इट. ओके इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है ये? अब तो सही लग रहा है. बहुत जो आपने समझाया वो डिफिकल्ट था, पहले दिखा देते ना. पहले दिखाते तो तुम ना सुनते नहीं. थोड़ी जो कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ी एल्गोरिथम जानना बहुत जरूरी है. अब अगर मुझे ये देखना है कि सिर्फ इस वाले को देखती हूँ मैं थोड़ा और क्लोज से, ये देखो ये क्या हुआ, ये वो वाले नंबर्स है, रेस्पोंडेंट्स के नंबर्स, ये सारे थोड़े पास में थे, ये सबसे पहले थे, ज्वाइन हो रखे थे, ये भी सबसे पहले. और फिर ये देखो ये कहाँ पर, इससे पहले कौन सा ज्वाइनिंग डिस्टेंस पे, ये सेकंड ज्वाइनिंग डिस्टेंस पे ये सारे रेस्पोंडेंट्स ज्वाइन हो गए, ये वाले नंबर्स. ओके फिर ये वाले रेस्पोंडेंट्स ज्वाइन हुए. तो ऐसे ऐसे ये मेरा डेंडोग्राम बन गया. और इस डेंडोग्राम से अगर तुम देखते हो, यू विल फाइंड कि कुछ कितने क्लस्टर्स दिख रहे हैं. कहाँ पर कट करूं मैं, यहाँ पर कट करूं, यहाँ पर कट करूं 20 के आसपास, ये यहाँ पर 10 के आसपास. मैम 10 के ऊपर. 10 के ऊपर यहाँ पर जहां पर कट किया, कितनी ब्रांचेस कट हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड. बेसिकली मेरे ये 1 2 3 क्लस्टर बन गए. सो इट विल गिव मी जस्ट 3 क्लस्टर सॉल्यूशन. बस ये करना है. और फिर मैंने ये एक रन किया कोड कि मेरे क्लस्टर 3 हो, कट करो 3 पे. ओके और उसका बॉर्डर रेड कर दो. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. बस मेरा डेंडोग्राम बन गया. अब तुम्हें एग्रीगेट तो फंक्शन पता ही है तुम्हें. ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्रीगेट का फॉर्मूला है, जो हमने सीखा था वही वाला एग्रीगेट का फॉर्मूला यूज करना, उसी में मैंने डाला हुआ है. हमें एग्रीगेट करना है ग्रुप वाइज ये सारे वेरिएबल्स. बहुत इजी है. कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम एग्रीगेट करते हैं. ये तो सब सीखा था ना एग्रीगेट फंक्शन. ये वाला फंक्शन, ये वाला मत देखना जो मैंने फाइल में दिया हुआ है, यू नो कोड फाइल में जो है एग्रीगेट वाला सेकंड ऑप्शन जो इजीएस्ट मेथड है वो देखना. तो तुम्हें कुछ इस टाइप का एक ग्रुप 1 2 3, बेसिकली व्हाट इज ग्रुप 1 2 3, ये फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड. हाँ सो फर्स्ट क्लस्टर शॉप फन में क्या रेटिंग्स है, फर्स्ट क्लस्टर इस पे क्या दे रहा है. तो क्योंकि हमने डेटा स्टैंडर्डाइज किया था, रिमेम्बर स्टैंडर्डाइज किया था ना मैंने डेटा, स्केल किया था, स्केल फंक्शन यूज किया था. तो इसलिए जो भी 0 से बेसिकली जो पॉजिटिव होगा दैट्स अबव एवरेज और नेगेटिव होगा बिलो एवरेज. सो अगर मैं फर्स्ट अपना क्लस्टर देखूं एंड इफ आई ट्राई टू प्रोफाइल इट, सो इट सेज कि जो शॉपिंग इज फन है, दे फील द शॉपिंग इज फन, दे फील they can combine shopping with eating. इस पे आ रहा है. ठीक है. अगर मैं सेकंड क्लस्टर को देखूं, they are the ones who feel what, they don't care about shopping. इस पे हाई आ रहा है ना सबसे ज्यादा. यहाँ से ये देखो, इधर से देखो. ओके और अगर मैं थर्ड क्लस्टर देखूं तो what are they saying, ये देखो इस पे सबसे ज्यादा आ रहा है दिस. वो कह रहे हैं कि बजट शॉपिंग. मामी आप एनालिसिस पे कर रहे हो? हाँ मैम लाइक आप ये जो एनालिसिस कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो कि 1 ग्रेटर देन 1 को एक कॉम्बिनेशन, जो -1 है वो एक क्लस्टर, नहीं जस्ट मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है वो इस पे कितना, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला देखा, इस पे हाईएस्ट उसका किस पे आ रहा है. मैम लाइक हमारे 3 क्लस्टर बने थे. हाँ तो मैम वो 3 क्लस्टर इस समरी में कहाँ है? ये फर्स्ट 1 2 3 सेकंड थर्ड. ओके ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्लस्टर. 64 वाले फर्स्ट पे आए 48 रेस्पोंडेंट्स, सेकंड में आए, थर्ड में भी 48 रेस्पोंडेंट्स आ गए. टेबल हमने रन करा इसमें. ठीक है. और इससे मैं ये क्लस्टर्स रीड कर रही हूँ बेसिकली कि फर्स्ट क्लस्टर वाले वो हैं जो कह रहे हैं शॉपिंग इज फन, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू शॉपिंग इज फन इनमें सेकंड और थर्ड में तो है नहीं. तो दिस विल गो इन
फर्स्ट क्लस्टर, ये वाला शॉप बजट वाला वैल्यू इसमें आएगा थर्ड में, ये वाला किस में आएगा फर्स्ट में, हाईएस्ट वैल्यू किस में है। तो ऐसे ऐसे करके देन यू कैन प्रोफाइल कि हर एक कॉलम्स में तुमने देखा कि कौन सा हाईएस्ट वैल्यू है और वो किस क्लस्टर में आ रहा है, एंड देन यू कैन प्रोफाइल ओके ये वाला इस फर्स्ट में आया, देन आई विल प्रोफाइल इट दैट दीज आर द पीपल हु थिंक दैट शॉपिंग इज फन and who combines with shopping. Basically they are the ones who are like who have positive attitude towards shopping. Okay, ये समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, बस ये ऐसे ही इसको रीनेम कर देंगे। एग्रीगेट वाला डेटा जो इजी वाला फॉर्मूला है वो देखना तुम, और इसे ऐसे ही हमने रीनेम कर दिया। लेबल्स का भी मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है उसमें, ठीक है। फन शॉपर्स इनसे बना दे, ऐसे पैथेटिक शॉपर्स, तो तुम्हें इस टाइप की कोई एक टेबल दिखेगी, और उसके बाद हमें सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आप एग्रीगेट भी रन कर सकते हो, आप क्रॉस टैब भी रन कर सकते हो, तुम्हें दोनों ही आता है, और क्रॉस टैब सिंपल वाला भी रन कर सकते हो। तुम वो फाइल देखना, फिर मैंने देखा है कि बाय दीज क्लस्टर्स यू नो ये ग्रुप 1 2 3 को जेंडर्स के साथ रन करते हैं और देखते हैं कि जेंडर वाइज क्या डिफरेंस है, कि फन शॉपर्स फीमेल्स ज्यादा है या मेल ज्यादा है। बाय एज रन करते हैं, एज के इसलिए ब्रेक्स निकाल लेते हैं और फिर चेक किया कि क्या डिफरेंस है। ऐसे ही इसको एसपीएसएस से क्यों नहीं कर रहे हैं, आर से क्यों कर रहे हैं? एसपीएसएस से तो बहुत इजीली हो जाएगा। आर से उससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। अच्छा, ट्राई करके देखो एक बार, आर से उससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। प्लस आई डोंट वांट यू टू लर्न एसपीएसएस अगेन, वो तो पहले भी तुमने सीखा हुआ है, एंड देयर आर सो मेनी पैकेजेस, वो सब चीजें यू नो इट्स इजियर इन आर। एसपीएसएस में हम लोग ने सेंट्रोइड मेथड भी करा था इसी में। हाँ वो है के मींस, यस। के मींस में क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, के मींस वाला मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया था, just a second whether I have it here. हाँ ये रहा। So ये सेंट्रोइड मेथड होता है, इसमें क्या देते हैं, whatever the numbers of clusters you know you got from hierarchical clustering। यहाँ पर मेरे 3 clusters आए, तो k-means में ही मैं एक कोड रन करूंगी और मैं उसमें बता दूंगी how many clusters I want, this is data and these are the number of clusters। सिर्फ ये हमें देना होता है। There is something called iter max, कितनी इटरेशन करनी है, कितनी बार वो सेंट्रोइड कैलकुलेट करे, कितने सैंपल्स स्टार्टिंग से ले। दिस इज समथिंग दैट मतलब तुम अभी यू नो इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, बट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट आई विल पोस्ट दिस, व्हाट इज आइटम मैक्स, व्हाट इज एन स्टार्ट, यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट वीडियो। एक और चीज, कुछ और चीजें बताते हैं। 3 क्लस्टर्स 64 48 48, हमारे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी यही डेटा आया था। जैसे कि उसमें हमने एक टेबल देखी थी, ये फर्स्ट क्लस्टर इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो ये हायरार्किकल क्लस्टर जैसा ही इसने भी हमें के मींस ने भी हमें ये बोला। देन ये क्लस्टरिंग वेक्टर भी बताता है कि ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन से क्लस्टर में जा रही है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट क्लस्टर, फर्स्ट इन फर्स्ट, दिस थर्ड इज गोइंग इन सेकंड क्लस्टर, ये सब चीजें थे। कुछ विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स वगैरह ये सब वैल्यूज भी देते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस मैम यू आर ऑडिबल। मैम आ रही है आवाज? ओके सो बेसिकली ये सब ये के मींस बताता है। दिस इज व्हाट के मींस। मैम हमारी क्लास में कैरी मिनाटी भी आया हुआ है। कैरी मिनाटी, हु इज कैरी मिनाटी? ओके सो आप सब लोग so our next session is on Monday, okay? Yes ma'am. उससे पहले you have 5 days, go through all those course, run it again. कोई प्रॉब्लम आती है just post it on forum, make sure by Friday you should be able to run all the codes, ठीक है? Okay ma'am. मैम इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ओके मिल जाएगी, बट हाँ ठीक है, बट मेक श्योर कि तुम वो सारे कोड्स रन करो। ये भी ट्राई करो कि नेम डिफरेंट नेम कर करके, अच्छा ठीक है सेगमेंटेशन seg.data करके किया, मैं अगर किसी और नेम से इसे करती हूँ तो वो वाला डेटा, फॉर एग्जांपल योर ओन नेम, व्हाटएवर मनीषा
data ऐसे करके, और फिर जब तुम इसे स्केल कर रहे हो तो उसे और कुछ नेम दे दो, स्केल्ड मनीषा। सो तुम्हें हर एक जो स्टेप्स होंगे ना कि कौन सा डेटा कब उठाया है, why we are picking this data set, why we are not picking the whole data set, और जो हमारा ये डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इसलिए डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारा न्यूमेरिक डेटा है हमने वो पिक किया है। जो हमारे सेगमेंटेशन वेरिएबल्स है हमने वो वाले लिए हैं टू मेक सेगमेंट्स। ओके, ग्रुप्स हमने सेगमेंटेशन वेरिएबल्स पे लिया है जो कि हमारे वो 6 वेरिएबल्स हैं। बट जब हम उसे प्रोफाइलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं, बेसिकली जेंडर, इनकम, मैंने उसके साथ क्रॉस टैग किया है टू सी कि हमारे क्लस्टर वाइज क्या डिफरेंस है, कि फर्स्ट क्लस्टर में मेल है या फीमेल है, फर्स्ट क्लस्टर की इनकम ज्यादा है, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस। ओके, तो समझ में आ रहा है थोड़ा? आई एम श्योर कि अभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बट एक बार तुम रन करोगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। What do you think? हम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, तो वो I would request you not to give another assignment for next 2 to 3 days so that we can go through all this stuff. इसीलिए मैंने बोला फ्राइडे तक, फ्राइडे इज द डेट, फ्राइडे तक वो सारे कोर्स 6 बार 7 बार 10 बार रन कर लो। ओके, अगर तुम फ्राइडे तक कंफर्टेबल होते हो, if there is any issues, if there are any queries, I'll solve that. Okay, just post it on forum. बैठे मत रहना, please don't sit on that. Just like try करो क्यों नहीं हो रहा है, क्या issues आ रहे हैं, क्या errors आ रहे हैं, just screenshot भेज दो forum पे। Okay? Okay ma'am. So that Monday when we start तो सबको वो पता हो, और if possible I'll give you more data sets to work on. Okay? Okay ma'am, thank you. Okay, so on Friday you'll be you have to tell me कि हुआ या नहीं हुआ. Also do post on forums. I have posted some questions. कल तक कर सकते हैं post उस पे on that gap study and Quidel. Okay? Okay ma'am. और जो age breaks वाला question है, you can do it manually as well and you can do it by system. I'll post that on forum कि वो age breaks जो होता है, ये मैंने बताया भी था तुम्हें second I think session में. For example, you can draw even histogram and see कि कितने age breaks में तुम्हें cut करने हैं. ये manually भी कर सकते हो, system wise भी कर सकते हो. I'll post about it so that तुम age breaks create करके और फिर वो cross tag run कर सको. Make it into categorical. Numeric को categorical में कैसे करते हैं convert. Okay. And ma'am, so, one more thing, I need clarification on that group activity. What exactly we need to do in that? Okay, so group activity, you need to, I'll share you one template as in what is the approach note. कौन से तुम्हारे target होंगे, किस type के brand के लिए, clothing brand है, किस type के brand के लिए, कौन से segmentation variables लोगे, कैसे identify करोगे. All these things you have to prepare an approach note. I'll share the template with you. Okay? Okay, ma'am. All right. Last date is Friday to upload that particular thing for the group activity. You have to just give template भर के देना है तुम्हें, just one word. Yeah, you can send it on Saturday, not a problem. Okay ma'am, thank you so much. Okay ma'am, thank you. Bye bye, have a good day. Bye.